Students, today we are moving on to much awaited topic, that is editing, or you can also call it as error correction. So this is the most important part in exams, especially your board exams, because it carries 4 marks. Although you can say that it's just 4 marks, but you all know it very well that even in exams, even that 1 marks matters a lot. So before moving on, let us first know what actually is editing. Correcting the mistakes, making improvement to it. So you will be given a passage or a paragraph और उसमें कुछ mistakes होंगी. So you have to make improvement to it. How will you make improvement to it? By correcting the mistakes. To make change in a text, आपको जो text दिया जाएगा उसमें आपको change करना है. How will you change? By checking whether that is correct or wrong. It is the job of the editor to remove errors. Editing is generally done during proofreading. So what actually is proofreading? It means carefully checking for errors in a text before it is published or shared. It is the very last stage of the writing process when you fix minor spellings and punctuations, mistakes, typos and all. Typos मतलब अगर typing में कोई mistake हो. So एक्चुअली में एडिटिंग सबसे लास्ट काम होता है. अगर हमने कुछ लिख लिया है उसके बाद हम क्या करते हैं मोस्टली, लाइक इन एग्जाम्स व्हाट डू वी डू? अगर हमारा एक बार पेपर ख़त्म होता है देन वी रिवाइज द पेपर, राइट? सो एडिटिंग इज सिमिलर टू दैट. So now let us know the general rules of error correction. Okay, the most important thing that most of the students doesn't do is they don't read all the sentences. When I say that read all the sentences, yes, we do that, but how do you do that? That's important thing. I have seen in the examination what students normally do is that when they get the paper, they just read the first line of the question and they start writing answer. This is completely wrong. जब आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता है आप सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ते हो और उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हो. Okay, so those who are unfamiliar with error correction, listen. Error correction या editing, it is the mostly easiest form, or I can say ये कैसे होता है. It mostly comes in the form of paragraph जिसमें 4 से 5 lines होती हैं. Okay, so instead of reading just one line, you have to read the whole sentence. Now next. ओके, सो जब मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको पूरा वो जो 5 लाइन्स है वो पूरी पढ़नी पड़ेगी. क्यों? बिकॉज हियर यू विल गेट टू नो. एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा. देन सेकेंड टाइम व्हेन यू रीड इट, सो दैट टाइम यू विल कम टू नो कि हाँ कहाँ गलत है. एंड वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज टेंस. नो द टेंस. सो नाउ you have to understand what tense it is. In the question paper normally what I have seen is कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में एडिटिंग में या तो सिंपल पास्ट टेंस आता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है. सो बेसिकली इसमें काफ़ी ईजीएस्ट फॉर्म्स आते हैं. ओके, सो यू शुड नो द टेंस. आपको पहले पूरा सेंटेंस पढ़ना होता है, उसके बाद आपको पता लगाना होता है कि वेदर द सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट और इन सिंपल प्रेजेंट और इन एनी टेंस. There will be error in each line. Like I told that there will be 4 to 5 lines, and in each line, for a hint, they'll give you example for you. And yes, one very important thing. मैंने इस बार भी यूनिट टेस्ट में I've noticed many students what do they do. आपको जब most of the time in editing there will be choice that like they will give you 5 questions and out of 5 questions you have to solve only 4 questions. All right. एंड वो ख़त्म होने के बाद ए लिखा रहता है. देन यू हैव टू राइट द इनकरेक्ट वर्ड एंड देन लेटर ऑन यू हैव टू राइट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन फ्रॉम दिस सेंटेंस. सो इन दिस यूटी ऑल्सो वुड आई हैव ऑब्जर्व्ड इज आप लोग क्या करते हैं, यू डोंट पुट द करेक्ट सीरियल नंबर. लाइक ABCDE होते हैं 5. इफ़ यू डोंट नो C, सो जस्ट लीव दैट C ब्लैंक. इधर लीव दैट ब्लैंक और डोंट मेंशन इट. मतलब आप ABDE कर सकते हो. बट हियर what students did was ABCD तो उन्होंने mention किया था, but the answers were jumbled. This time I gave you marks because this was the first time that you were attempting.
but from next time onwards make sure that you have to put correct serial number to each question that you are doing. Next. Okay, so what can be the errors that we find in the passage? That is tenses, verbs, prepositions, articles, determiners, all these things. Okay, so now we will move on to the specific rules of editing. See, editing is not that much tough in English grammar. There are two important things that you have to always keep in mind before solving any grammar. First is your language, आपकी language अच्छी होनी चाहिए, and second is logic. You should have some logic. मतलब editing में there are two important things. आपकी एक language अच्छी होनी चाहिए and you should have the logic to solve that question. If you have the habit of reading books, after reading you can easily solve the editing. Okay, so moving on, these are the rules which I'm going to tell you, that how these are the words like tenses, verbs, prepositions, article, determiners. These rules which I'm going to tell you right now, you are already familiar with them, right? You already know them because in the previous class and in the previous sessions also I've explained you these. So the first is articles. Okay, see, everybody knows articles, right? A and the, ये हमने सबने पढ़ा है. Everybody knows A is the common article. हम कब यूज़ करते हैं? Example, I just saw a boy. I just saw a girl crying. I just saw a elephant not elephant. I just saw a cat crossing the road, right? A. हम तब लगाते हैं when mostly we are talking about a single person. अब मैं ऐसे वर्ड यूज़ नहीं कर सकती I saw a boys singing, क्योंकि इसमें टू या फिर मोर देन 2 पर्सन्स की हम बात कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, एन, ए एन का यूज़ क्या कब करते हैं? यू नो व्हेन डू वी यूज़ एन? मोस्टली इन वॉवल्स ए ई आई ओ यू, राइट? सी, आप जब भी देखते हैं ए ई आई ओ यू तो आप क्या सोचते हैं कि एन कब लगेगा? सिर्फ ये 5 वर्ड्स के आगे ही लगेगा, राइट? तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विच आई वॉन्ट यू ऑल टू मेक इट क्लियर, आई होप ये लास्ट क्लास में भी आपको क्लियर कर दिया गया था, बट यहाँ मैं अभी फिर से क्लियर कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं होता है कि ए ई आई ओ यू के आगे ही एन लगेगा. हम हमेशा वॉवल की साउंड में जाएंगे. हियर साउंड मैटर्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज फोनेटिक्स, राइट? जैसे एलिफेंट, ऑब्वियसली वी नो ई आ रहा है तो वो एन आएगा उससे पहले. बट देर आर फ्यू वर्ड्स लाइक यूनिवर्सिटी एंड व्हेन यू गेट दिस वर्ड यूनिवर्सिटी, आप आगे अगर इसके आगे ब्लैंक लगा होगा तो आप क्या लिखेंगे? आप हमेशा व्हाट डू यू डू? यू राइट एन. क्यों? क्योंकि यू आ रहा है और यू क्या होता है? ये वबल होता है. तो हमने यही पढ़ा है लास्ट क्लासेस में कि ए ई आई ओ यू के आगे हम एन लगाते हैं. बट दिस इज़ रॉन्ग. ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जो भले ही वबल से स्टार्ट होते हैं बट उनके आगे एन नहीं लगता, क्योंकि उनकी प्रोनाउंसिएशन वो यू से स्टार्ट नहीं होती है. यूनिवर्सिटी, वाई ओ ओ, यूनिवर्सिटी की प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है. यूनिक, यूनिक के आगे भी हम एन नहीं लगाएंगे, उसके आगे अ ही लगेगा. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ओके, देन कमिंग टू द वर्ड, हमने ए अ पढ़ लिया, अ कब लगेगा? एन पढ़ लिया. द क्या होता है? द डेफिनेट आर्टिकल होता है वेर यू कैन स्पेसिफाई समथिंग. ओके, so these are the 3 articles, a, an and the. See, example, I saw a boy, the boy was eating an apple. हमने ऑलरेडी एक के बारे में बता दिया कि I saw a boy, मैंने एक लड़के को देखा. अब हम वापस ही थोड़ी बोलेंगे कि एक लड़के को मैंने देखा कि वो एप्पल खा रहा था. तो ऑब्वियसली व्हाट इज़ द रॉन्ग वर्ड हियर? द रॉन्ग वर्ड हियर इज़ अ, जो एक कट होके इसमें करेक्ट वर्ड क्या होना था? द. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, यूज़ ऑफ एन. हम यूज़ ऑफ एन कहाँ करते हैं? ए ई आई ओ यू के आगे. अब जस्ट लुक एट दिस सेंटेंस, मैंने इसके आगे क्या लिखा है? एन एम ए एंड एन एम एल ए. नाउ
Why did I keep an here? जब हम बात कर रहे हैं ऊपर हमने साफ साफ लिखा है कि AEIOU के ही आगे an लगता है. No, like in the first example I told you कि ज़रूरी नहीं है कि AEIOU हो तभी आप an लगाओगे. You also have to check whether उसके phonetics क्या है, उसके pronunciation क्या है. MLA M A एम करके हो रहा है, तो इसके प्रोनाउंसिएशन ए से नहीं जा रही है, तो दैट इज़ द रीज़न वाई हम क्या लगाएंगे. और ये क्या होते हैं, MA MLA BCom, ये सब क्या होते हैं, ये एब्रीवेशंस होते हैं. तो इनके आगे हमेशा हम AN ही लगाएंगे, एन. तो कई बार आपको पैसेज में भी ये गलती से दे दिया जाता है कि अ MLA वॉज स्टैंडिंग देयर, तो इसमें से ईजिली व्हाट यू हैव टू you have to find out the error कि MA MLA ये सारे एब्रीवेशंस और जिसके साउंड्स अलग आते हैं तो उसके ए की साउंड आते हैं, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, क्योंकि इसमें ए की साउंड आ रही है. MLA. See, my mother is MA in English. Now next third rule, each of, neither of, either of plus single verb. मतलब ये अगर whenever you're going to find this sentence each of या neither of या either of, और अगर उसके आगे single verb लगता है तो वो हमें ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हमेशा उसके आगे एक सिंगल वर्ब लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ देम वॉज अ रॉबर, तो यहाँ ये सिंगल वर्ब क्या है, वॉज एक सिंगल वर्ब है. तो ईच वन ऑफ यू कीप क्वाइट, तो हम यहाँ एक एक पर्सन की बात कर रहे हैं. हम अगर भले ही उस क्लासरूम में 10 लोग हैं या 30-40 पीपल हैं, इफ़ वी आर सेइंग ईच ऑफ मतलब हम एक हर एक पर्सन को इंडिविजुअली बात कर रहे हैं. Here was is a single verb. I hope students this is clear. To make it more clear, again the same slide but a little bit different. See, use a before a consonant sound, use an before vowel sound, but आपको you should also keep this thing in mind. You have to also check the sound कि उसमें जो, because I told you that sound also matters a lot. Use the before definite person, place, thing. Example, names of religious books, the Ramayana, the Bible, river, the Ganga river, the Brahmaputra river, the sun, planet, the Jupiter, mountain, sea, magazine, etc. तो इसके आगे हम हमेशा क्या लगाते हैं, the लगाते हैं. So these are the basic things that you have to keep in your mind if you want your answers of editing completely correct. Then more rules. 2 plus verb. अब यह याद रखना, जब भी टू आता है तो उसके आगे जो वर्ब होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होगा. जैसे आई वॉन्टेड टू सिंग, टू के आगे जो वर्ब है वो क्या है, वो फर्स्ट फॉर्म है. नाउ दिस वन, ही इज गुड डैश English. I am giving you 10 seconds to think. आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, दैट्स द रीज़न वाई 10 सेकेंड से भी मैं पॉज लूँगी कि इस ब्लैंक में आप खुद सोचिए कि इस ब्लैंक पे भी क्या आने वाला है. ही इज़ गुड डैश इंग्लिश. ओके, तो आई एम श्योर आपका जो मोस्टली जो सबका आंसर आया होगा वो आया होगा ही इज़ गुड इन इंग्लिश, राइट. हम यूजुअली यही यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग. हम इन नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ही इज़ गुड एट इंग्लिश. जब भी, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ सब्जेक्ट, और जब भी सब्जेक्ट्स की बात आती है वी आर नॉट गोइंग टू से इन. ही इज़ गुड इन इंग्लिश, वो इंग्लिश के अंदर अच्छा नहीं है, वो इंग्लिश में अच्छा है, इसलिए दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर यूजिंग एट. इन हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में, अंदर के बारे में बताते हैं. जैसे द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, वो क्लासरूम के अंदर हैं, तो यहाँ ही इज़ गुड इन इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर अच्छा नहीं है, वो इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छा है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी यूजिंग एट. चाहे यहाँ कोई भी अदर सब्जेक्ट होता, बी इट साइंस, मैथ्स, SST और व्हाटएवर, यहाँ हमें क्या आता, हमेशा एट आता. तो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड. मूविंग फर्दर,
everyone, everybody, somebody, nobody प्लस सिंगुलर वर्ब। तो ये जो वर्ड्स हैं everybody, somebody, nobody, तो इसके आगे भी हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, क्योंकि somebody is standing there, कोई खड़ा है वहाँ, हम एक पर्सन के बारे में बात करें। दो ये वर्ड्स अगर जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है काफ़ी लोग हैं। एवरीवन मतलब वो हर एक इंसान के बारे में बोला जा रहा है। एवरीबडी कीप क्वाइट मतलब एक एक को बोला जा रहा है कि यू ऑल कीप क्वाइट। आई होप दिस इज क्लियर। Fifth point is very important because most of the time what I have seen is students do mistake in this. So just make the concepts clear from this video. Okay, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए अगर आपको एक एडिटिंग का मिलता है, प्रपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड। अब सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड में we have already covered this topic, so I'm sure that you all know about it very well. Boys are, why are we using are here? Because we are talking about more than two persons, right? Boys are, अगर यहाँ boy होता तो हम क्या लगाते, is. I am, we are just talking about one person, तो am. She has, he, she, it के आगे हमेशा has लगता है, I के आगे have. I do not, she does not, we are, why are we using we are? क्योंकि यहाँ दो तीन लोगों से ज़्यादा की बात हो रही है। Ami goes, we go. All right. So editing of prepositions, अगर आपको कुछ ऐसे prepositions मिलते हैं जैसे on, अगर आपको पूरा सेंटेंस सही लगता है तो आप जब prepositions ढूंढेंगे तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसका करेक्ट एडिटिंग का वर्ड, फॉर एग्जाम्पल on का करेक्ट एडिटिंग होगा over, under का below, behind का beside, in का into, out का out of, to का towards. Okay students, after seeing this word, one more thing what I have observed is many of you get confused between what is the difference between in and into, right? Most of the students get confused between these two words. Okay, in is अगर ये for example ये एक box है, कोई container है, there is a ball inside it. So what are we going to say here? The ball is in the container, right? हमने in क्यों बोला? क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट का कोई मोशन नहीं होता है तो हम उसे इन कहेंगे, ठीक है? वो एक रेस्ट पोजिशन में, ये कंटेनर के अंदर बॉल क्या है, ये रेस्ट पोजिशन में, दैट इज द रीजन वाई वी आर यूजिंग इन। वेरएज इनटू मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डोर, वन पर्सन इज कमिंग इनसाइड एंड देन गोइंग आउटसाइड, तो उसका मोशन है। इनटू हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ का मोशन हो रहा होता है, अंदर बाहर कोई कर रहा होता है। So I hope students I tried my best to make you all clear with this concept of editing, which is very important, which you are going to face in every exams from 9th onwards, especially in 10th. In board exams you will be having definitely this exercise of 4 marks where there will be either 4 or 5 questions where you will be given choice. सो आई टोल्ड यू कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। मैंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट डू दे डू, आप सीरियल नंबर गलत कर देते हैं। तो इसमें मैंने, और कई बार रूल्स आपको समझ नहीं आते तो आपको जो सही लगता है आप कर देते हैं। तो बाय दिस वीडियो आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स, योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, या तो आपने कभी पढ़ा भी होगा तो आप भूल गए होंगे। तो आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आई एम श्योर दैट you will be able to clear your basic concepts, and from next time onwards whenever you're going to find a editing passage you'll be very happy to solve it, because you know what happens, if you know the rules very well then you want to do the exercises more and more. So I hope that after seeing this video you'll open some of your book and you will try solving all the questions of editing. Students, just go through this video again and again. If you have any query, you can ask me in the comment box. You can leave your comment with your query. Thank you, students.